Over. Classes, be strong. Classes, सावधान. Assembly activity start. Please. India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of it. Rich and varied heritage. And I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion. India will be and prosperity. Along lies my happiness. Jai Hind. Classes, be strong. Morning to all. I am Pariksha of class 8 behalf of Navigation with today's thought. My thought is, we all are in the same boat, brother, with a mix of crew, with an eyes of black and brown. This by Dr. Bhupen Hazarika. This song means we all human irrespective to our nationality, caste and creed. Humanity come first. I repeat my thought. This song means we all humanity come first at our nationality, caste and creed. Humanity come first. Thank you and have a great day. Good morning to all. I am Nisha of class 8 with today's word. Today's word is Khudha Kantha. It is the synonym of Sri Bhupen Hazarika in Assam. In English, it means a person possessing a melodious voice. In Hindi, it means एक ऐसा व्यक्ति जिसके स्वर मधुर हो. In Assamese, it means এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যাৰ কণ্ঠটো মধুৰ হয়. Thank you. Have a nice day. Good morning to one and all.
to today's poem. The title of my poem is O Ganga, Why Do You Flow? The people who live in the vast stretches on your both sides are screaming in grief. Yet meekly as always, O Ganga, O Ganga, why do you flow? Morality is destroyed and humanity is corrupted. Yet shamelessly, why do you flow? With a loud voice of anger, the history beckons. O stream of Ganga, why do you not turn weak into strong warriors and complete doers? There are uncountable numbers of uneducated, illiterate, and unfed people. Yet, like a blind that cannot see, O Ganga, why do you keep silent? With a loud voice of anger, the history is beckoning. O stream of Ganga, why do you not turn weak into strong warriors and complete doers? Thank you and have a nice day. Good morning to one and all present over here. I am Manchita from class 12 with today's quiz. My questions are class-wise. My first question is, when was Dr. Bhupen Hazarika born? Yes, the correct answer is 8 September 1926. My second question is, Bhupen Hazarika was popularly known as? Yes, the correct answer is Khudha Kantha. My next question is, in which year he won the Bharat Ratna? Yes, the correct answer is 2019. The next question is, when is his death anniversary celebrated? Yes, the correct answer is 5 November 2011. My next question is, when he won the India's second highest civilian award? Yes, the correct answer is 2012. My next question is, in which film did Bhupen Hazarika sing for the first time? I repeat my question, in which film did Bhupen Hazarika sing for the first time? The correct answer is Indra Malati. My next question is, how many songs did Bhupen Hazarika write? I repeat my question, how many songs did Bhupen Hazarika write? 175. Yes, the correct answer is 175. Now my last question is for all. Which is the first film directed by Dr. Bhupen Hazarika? Yes, the correct answer is Airavatar 4. Thank you and have a blissful day ahead. Good morning to one and all present over here. I'm Shaheen of class 12 with today's news. At first, local news. Government apathy hits Assam Forest Rangers hard. Bhupender Sangeet contest held at B. Barua College, Guwahati. And now, regional news. After 6 years, Sensitive Road reopens through Punjabi Lane in Shillong. Movement to reclaim Sakra land started in Nagaon, Morrigaon district. And now, some national news. India-Vietnam joint military drill gets underway at Ambala. Jammu and Kashmir government to make all efforts for 5 statehood restoration, late Governor Sinha. Now some international news. Chinese astronauts return to Earth after 6 months stint in space station. Israel ends pact with UN agency providing aid in Gaza. At last, some sports news. Manchester United play 1-1 draw with Chelsea. Saha announces retirement after this year Ranji Trophy. Olmo leads Barcelona to City, thereby wins by Espanyol. Thank you, have a great day. Good morning. Good morning to all. I am Sukanya with today's book review. The name of the book is Bhupen Hazarika, As I Knew Him. I am holding the book in my hand such that all of you may have a glance upon it. Now, judging by the cover of this book, it is quite understandable that the book is saying something about our great Dr. Bhupen Hazarika. But there are many, in fact many books that are written regarding Dr. Bhupen Hazarika.
But what's so special about this book? The book is something special because it was written by Kalpana Lajmi, the daughter of the well-known Assamese painter Lalita Lajmi. She was a critically acclaimed film director who stood by Dr. Bhupen Hazarika through thick and thin. Now, this book, as it seems, is not just simply the biography of Dr. Bhupen Hazarika, but the author has also brilliantly given us the autobiographical account of her own life. She has drawn our attention towards the principles of Dr. Bhupen Hazarika through this book, how he was deeply influenced by socialism and how he refused to commercialize himself by endorsing products. Such integrity and high thinking is quite rare among the artists of this present generation. Now, drawing to the conclusion of this book review, I hope it was helpful to most of you, and those who are interested in reading this book, have some time and allow yourself to read it. Thank you. Have a great day. Most Honorable Assistant Commissioner of NDSRO Shillong Region Sri Malaram Chaudhary Sir, most respected principals of JV Udalguri and JV Dharam, most distinguished Pranjit Das Sir from Morigaon College, and my respected principals, sir, teachers, my dear brothers and sisters, and my dear lovely friends. Good morning to all. I am Prachar Sarkar from class 9 here today in front of you with today's speech. As we all know, our Assam's Ratna, Dr. Bhupen Hazarika, has departed from this world on 5th November 2011. So our morning assembly was dedicated to remembering him only. The famous Assamese playback singer who was also a lyricist, famous actor, filmmaker, musician, poet and politician. Due to his sweet and melodious voice, he was popularly known as Sudhakanta. Most of his songs were mainly based on universal brotherhood, love and humanity. The Bard of Brahmaputra was born in Sadia, a town in Assam on 8 September 1926. He belonged to the family of artists. It was his mother who introduced him to the world of music through her lullabies. She also gave him the knowledges of Assamese cultures which are reflected in his songs. And he got many awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Shri and so on. I would like to conclude my speech with few of his lines. That old man's river, he must know something, but don't see nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. Thank you and have a nice day. Classes, Savdhan. Community song start.
Speech. Most Honorable Assistant Commissioner NVS RO Shillong, Sri Malaram Chaudhary Sir, respected Sri Mayan Gandhi Principal, JNV Darang, respected Rajendra Kumar Sir Principal, JNV Udalguri, and Professor Pranjit Das, Department of Commerce, Morigao College, and Venu Principal Sir, my respected colleagues and dear students, very good morning to you all. Good morning, ma'am. Today, today is the death anniversary of our Sudhakantha Dr. Bhupen Hazarika. Already our speaker told that our morning assembly was dedicated to him. We are very fortunate that we are having many guest dignitaries in our morning assembly today. You have observed that since yesterday they have been observing our activities. Hope they will guide us with their experience and enlighten with their valuable words so that we can proceed towards the success. In this morning assembly, as a MOD, I want to convey one message through a story, short story. One person was walking by the side of a group of elephants, which were tied by a small rope. Then he was amazed by the fact that how this small rope can hold the group of elephants. So he was thinking. By that time he saw the elephant trainer was standing behind the group of elephants. Then he asked, why you are tying this elephant group with small ropes? Then how it is possible to hold this huge elephant with a small rope? Then he replied, sir, since they are young age, we are tying these elephants with these small size ropes. It was enough, that time it was enough to hold them. Now also we are doing the same. When they tried to tear or break the rope in their childhood period, they were not able to do that. So they also now conditioned to believe that they cannot do it. So this is the reason why they do not break the rope. Then I want to say the moral of the story, that it was only a false belief of the elephant that denied their freedom for a lifetime. So, my dear students, in our life also, failures may be there, but every time it does not repeat. So that when once you fail, you do not tie that false belief of the failure for a lifetime. In our life, we have to work hard, then we will get succeeded. So that's all. I think you have got the message, what I wanted to tell. Then, anyone's birthday today? Full moon of class 10. Please come here. Let's celebrate together. ये
आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप कल से देख रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे ही नवोदय विद्यालय परिवार के 3 प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं विद्यालय का वार्षिक पैनल इंस्पेक्शन करने के लिए, जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। हालांकि उनका परिचय मैडम ने भी करवा दिया, लेकिन फिर भी मैं औपचारिक रूप से उनका परिचय आप लोगों को करवाना चाहता हूं। हमारे बीच में इस पैनल इंस्पेक्शन टीम के जो प्रमुख हैं वो श्री मालाराम चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय संभाग शिलोंग उपस्थित हैं। उनके साथ श्री राजेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय उदालगुड़ी भी उपस्थित हैं, और साथ ही हमारे एक और अन्य जवाहर नवोदय विद्यालय दारंग के प्राचार्य श्री मायावन गांधी भी उपस्थित हैं, और साथ में मोरीगांव कॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर और डॉक्टर प्रांजित दास उपस्थित हैं। इस पूरे पैनल इंस्पेक्शन के लिए हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। चारों महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हैं, पूरे विद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों का इंस्पेक्शन करेंगे। कल से उन्होंने शुरुआत की है, और ये सारा जो इंस्पेक्शन है वो हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, उसका उद्देश्य यही है। हम लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी उसमें हमेशा कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है, और हम इतना अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें और सुधार लाने के लिए और उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें इन लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे बीच में नियमित रूप से उपस्थित होते रहते हैं। तो मैं विद्यालय की परंपरा के अनुसार अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो माननीय श्री मालाराम चौधरी सर का असमिया गमोसा और जापी प्रदान कर उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक श्री विश्वजीत चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पे आएं, और माननीय श्री राजेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय उदालगुड़ी का स्वागत करेंगे। मैं श्रीमती मीना बोला मैडम, पीजीटी बायोलॉजी से निवेदन करूंगा कि वो श्री मायावन गांधी जी का असमिया गमोसा और जापी प्रदान कर उनका भी इस प्रार्थना सभा में स्वागत करें। अंत में मैं हमारे विद्यालय के श्री शिव कुमार प्रसाद सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और प्रांजित दास सर का स्वागत करें। मैं चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य श्री अपूर्व कुमार रॉय सर का भी आज की प्रार्थना सभा में स्वागत करें। नहीं, क्योंकि आज का दिन विशेष है इसलिए, वरना ऐसी कोई लग रहा है। एक विद्यालय की परंपरा है ये भी, आज का दिन विशेष बनाए हम सब लोग। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति की नियमित परंपरा है, ये रूटीन प्रक्रिया है, जिसमें हमारे बीच में हमेशा कोई ना कोई उच्चाधिकारी हर एक वर्ष आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम अपने भविष्य के लिए अपने जो योजनाएं हैं उनमें सुधार कर सकें। तो इन महानुभावों का उद्देश्य भी यही रहेगा, और सबसे निश्चित रूप से हम लोगों को इनका जो आशीर्वाद मिलेगा, इनका जो मार्गदर्शन करेगा, इससे हमें अपनी मंजिलों को प्राप्त करने के लिए नए रास्ते मिलेंगे और हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि धूप होगी है थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत कम समय लेते हुए अब मैं माननीय असिस्टेंट कमिश्नर सर श्री मालाराम चौधरी सर को ओके मैं प्राचार्य श्री अपूर्व कुमार रॉय सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जो अतिथि के हमारे बीच में, अतिथि नहीं हमारे परिवार के सदस्य हैं, शिक्षा जगत के जो सदस्य हैं, उनके स्वागत में 2 शब्द कहेंगे। प्राचार्य महोदय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
Respected Assistant Commissioner Sir, Ambassador Silom, respected Principal JNB Udalguri, respected Principal JNB Dharan, and ex-alumni and professor from Morigaon College, and my dear colleagues and my dear students. Today we are lucky that some educationists are coming here to observe our activities. So we definitely carried out this one. So school is very good, all the activities are good. Only sometimes something is happened without knowing the reason. Anyway, our students very good, so definitely we will follow all the NVS norms. So whatever may be observed, definitely guide us that if any mistakes are there, definitely we will carry it out. Now I want to call AC sir for a few words. आप सभी को नमस्कार। इस महान भूमि डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब की जो जन्मस्थली असम, इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों को भी नमस्कार करता हूं और इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जो मेरे मन के अंदर आपके JNV मोरीगांव की जो सोच थी वो यहाँ आकर चेंज हुई, क्योंकि जब हम वहाँ बैठे रहते हैं तो बहुत सारी कंप्लेन आती है, बहुत सारी, तो उसके कारण मेरी ये सोच थी कि JNV मोरीगांव बहुत ही डिस्टर्ब स्कूल है। लेकिन जब देखा बहुत ही सुंदर कैंपस आपका, बहुत ही ग्रीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, आपका खुद का डिसिप्लिन और आपके स्टाफ मेंबर की जो टीम है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है ना। आप उस भूमि से है जहां डॉक्टर भारत रत्न और डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब का जन्म हुआ था, है ना। पूरा असेंबली के अंदर उन्हीं के लिए डेडिकेटेड थी। तो हम उस भूमि से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें हमारी सोच के अंदर, हमारे कार्य के अंदर, हमारी एक्टिविटी के अंदर उनकी सोच होनी चाहिए। आप पीछे देखते होंगे महान वैज्ञानिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो उसके नीचे लिखा हुआ प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है ना। सब कुछ ज्ञान है, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं होता है। और आपका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। जो JNV है, सेंटर ऑफ नॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक मॉडल स्कूल। जो JNV न मात्र एक स्कूल है, एक गुरुकुल पद्धति है, एक फैमिली है। सभी लोग हम यहाँ पर रहते हैं और हमें उस परिवार की भावना के साथ, उस गुरुकुल पद्धति के तहत यहाँ पे रहना है। दूसरे स्कूल से बहुत भिन्न है ये हमारा स्कूल। दूसरी स्कूल डे स्कूल होती है, सुबह बच्चे आते हैं 1:30 चले जाते हैं, लेकिन हम यहीं पे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और हमारा उद्देश्य सर्वांगीण विकास, हम बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास करते हैं। सुबह आपने मॉर्निंग PT की, योगा एक्सरसाइज जो किया, आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, आपका पौष्टिक खाना, शुद्ध खाना, और यहाँ पर जो अभी एकेडमिक है ना, तो आपका शैक्षणिक विकास, आपका शारीरिक विकास, फिर आपके खेल कूद है, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो हर तरफ से आपका विकास यहाँ पर होता है। तो जो JNV है वो अन्य स्कूल से बहुत ही भिन्न है, तो हमारी सोच भी भिन्न होनी चाहिए। हमारा रहने का, खाने का, पीने का, व्यवहार का वो तरीका भी दूसरे बच्चों से भिन्न होना चाहिए। एक दूसरे स्कूल का बच्चा खड़ा है और उसके पास में यदि आप खड़े हो, तो दोनों के अंदर डिफरेंट होना चाहिए कि JNV का स्टूडेंट है। एक दूसरे स्कूल का टीचर खड़ा है, एक हमारा टीचर खड़ा है, दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। एक दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल, एक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, उन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। एक दूसरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए, और वो अंतर है।
यू मस्ट हैव प्राउड ऑन योरसेल्फ। आप इस जिले के बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हो, आपका सिलेक्शन हुआ यहाँ पर, तो अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि मैं कुछ नहीं हूँ। आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। 8,000 7,000 बच्चे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम देने बैठते हैं, उसके अंदर आप लोगों का चयन हुआ है, तो बहुत ही होशियार बच्चे आप हो। तो लेकिन उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हम भटक जाते हैं रास्ते से कभी कभी, वो नहीं भटकना चाहिए। तो इतना सुंदर स्कूल है, इतना अच्छा स्टाफ है, इतने आप अच्छे हो, तो फिर कहीं कहीं गड़बड़ क्यों हो जाता है ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कहीं पर। हमने आपके हर एक्टिविटी को हमने देख चुके हैं, हम आपके हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार रैगिंग बुलिंग की हमें कंप्लेन आती रहती है। ये नहीं करना। हम सभी आपस में एक ही परिवार के मेंबर हैं। कल्पना करो, एक 12th क्लास का बच्चा, एक 11th क्लास का बच्चा जब छोटे बच्चे को मारता है, क्या वो कभी 6th क्लास में नहीं था? उसकी जगह वो होता तो क्या करता? उसकी जगह उसका भाई होता तो क्या करते? क्या हम ऐसे करते छोटे को? नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पर रैगिंग बुलिंग मार पीट तोड़ फोड़ ये घटना नहीं करना। आज के बाद हमारे अंदर सबसे पहले एक मनुष्यता होनी चाहिए। एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक टीचर बनता है, लेकिन एक इंसानियत वो हमारे अंदर होनी चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। कितना अच्छा हमारा वो कम्युनिटी सॉन्ग था, है ना, सामूहिक गीत था। हम तो कामयाब है ऑलरेडी, आप ऑलरेडी कामयाब है। हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी कि ये बता रहा है कि इन फ्यूचर के अंदर हम यदि ये करेंगे वो करेंगे तो हम कामयाब होंगे। नहीं, आप कामयाब हो अपने आप में, ठीक है। आप कामयाब है तभी तो यहाँ आए हैं, तभी तो आपका चयन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो और उसी के अंदर उसको लगातार रखना है। मेरी सभी टीचर से भी ये विनती है, इन बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखें, अपने बच्चों की तरह। यदि आप रूल्स रेगुलेशन में जाओगे तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, डूज डोंट, ये करो वो करो ये करो। सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर, यदि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक हाउस मास्टर हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, और यदि मेरी सोच ये है कि ये बच्ची मेरी है, ये बच्चा मेरा है, तो मैं कभी गलत करूँगा ही नहीं उसके साथ, कभी नहीं करूँगा। मैं एज ए सब्जेक्ट टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ और मेरे मन के अंदर होगा कि मेरा बच्चा इसके अंदर बैठा है आउट ऑफ 40 के अंदर, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, है ना। मेरा बच्चा होगा, मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। मैं ये नहीं देखूंगा एसी देख रहा है, प्रिंसिपल देख रहा है, नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है यानी मुझे अच्छी तरह पढ़ाना है। ये हॉस्टल है, इसके अंदर मेरा बच्चा या मेरी बच्ची रह रही है, तो मैं उसका कितना ख्याल रखूँगा, ठीक है। तो सभी टीचर से मेरी विनती है, ये बच्चे हैं हमारे, ये स्टूडेंट नहीं है, ये विद्यार्थी नहीं है, ये हमारे बच्चे, ऐसा ख्याल रखना है। तो ठीक इसके ऑपोजिट आपको भी, ये हमारा परिवार है, ये हमारी संस्था है, ये हमारी स्कूल है, इससे प्यार करना है, दोनों तरफ से होना चाहिए। जब टीचर्स आपसे इतना प्यार करेंगे तो आपको भी टीचर्स का, प्रिंसिपल का, संस्था के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, न कि विध्वंसकारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब आप इस संस्था से प्यार करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, है ना। तो इस संस्था से, इस स्कूल से और इस स्टाफ से आपको प्यार करना है और इनका रेस्पेक्ट करना, तभी ये स्कूल मिलकर एक आगे बढ़ेगा। एक ट्रायंगल होता है, इधर हमारा स्टाफ, इधर आप और एक साइड में आपके पेरेंट। ये जब ये ट्रायंगल मिलेगा तो हम एक बहुत ही एक सुंदर स्कूल के विद्यार्थी होंगे। ऑनरेबल पीएम सर की सोच, विकसित भारत, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अविकसित भारत था, फिर विकासशील भारत बना, अब हमारा भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। 2047 के अंदर कितने वर्ष हो जाएंगे भारत को आज़ाद हुए हुए? 100 वर्ष, ठीक है। 1947 के अंदर आज जब हमें स्वतंत्रता मिली, अब 2047 के अंदर, क्या अभी भी हम अविकसित रहना चाहते हैं? नहीं। अब 47 के अंदर, 2047 के अंदर भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे आत्मनिर्भर, सबसे संपन्न देश होना चाहिए।
और उस विकसित भारत को बनाने के लिए किसका योगदान होना चाहिए? आप लोगों का योगदान होना चाहिए। आप ही वो लोग हो जो भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं, हमारे ऑनरेबल पीएम सर की सोच के अंदर सम्मिलित होते हुए। आपके प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में सुना आपने कभी, है ना? ऑनरेबल पीएम सर का जो जन्मस्थली वडनगर महसाणा, मैं वहाँ पर प्रिंसिपल था, बहुत ही नज़दीकी से मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पर 1 वीक का आपका एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम वहाँ चलता है। पूरे देश भर से बच्चे वहाँ पर जाते हैं, 1 वीक वहाँ रहते हैं। आपके यहाँ से भी 2 बच्चे गए थे। हमारी सोच के अंदर हमारे देश के प्रति देशभक्ति, समर्पण और प्यार की भावना होना, हमारे परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी संस्था के प्रति, ठीक है? तो इस विकसित भारत के श्रेणी में हमें सम्मिलित होना। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका धूप बहुत ज़्यादा है, और ये भी हमने सर को बोला, आपके प्रिंसिपल सर को, इंडिया के अंदर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ 9:20 को असेंबली होती है। असेंबली का टाइमिंग क्या है? 7:40, ठीक है? जब मैंने सुबह आया यहाँ देखा, बहुत ही सुंदर ढंग से आप अपनी क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। आप यूनिफॉर्म के अंदर थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे थे, तो फिर ये असेंबली इतना लेट नहीं करना, ठीक है? हमारे जो पीएपी के अंदर, जो नॉर्म्स के अंदर, वो आपकी सुबह 7:40, 7:40, वो आपकी असेंबली का टाइम है। अभी कितनी धूप है, ठीक है? जो सुबह का टाइम होता है वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, तो आपका वो टाइम थोड़ा सा हम उसको चेंज करेंगे। हमारे नियम के अंदर भी वही है। आपका ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सुबह होगा। जब आप टाइम से ब्रेकफास्ट करोगे आपको एनर्जी मिलेगी। जब टाइम से यहाँ आओगे, जब जो सुबह का टाइम होता है बहुत ही अच्छा समय होता है, उसमें जब पढ़ाई करोगे तो आपके बहुत अच्छा दिमाग चलेगा। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों का और आपके पूरे स्टाफ टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ, ठीक है ना? आपके दास प्रोफेसर साहब, ये आपके एलुमनाई है, पता है आपको, है ना? कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर साहब, ये आपके एलुमनाई है, यहीं से पढ़ कर गए। मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोफेसर साहब को बुलाइए यहाँ पर, असेंबली के अंदर इनका टॉक रखिए। मैं भी आपका एलुमनाई हूँ, ठीक है? जरूर मैं जोधपुर राजस्थान का जेएनवी स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं। आपको पता है वर्तमान समय में 3 लाख स्टूडेंट, सबसे बड़ा एजुकेशन जो हब है हमारा जेएनवी, सबसे बड़ी चेन है हमारी एजुकेशन की। 3 लाख स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट हम जेएनवी के अंदर हैं। 40,000 एवरी ईयर एलुमनाई पास आउट होते हैं, है ना? हमारा बहुत बड़ा फैमिली मेंबर है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बहुत अच्छे अच्छे पद पर पहुँचे। ये कोई जरूरी नहीं हर एक लड़का आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, नहीं, एक अच्छा नागरिक बनना है ना? कोई गेम्स, कोई प्लेयर बनेगा, कोई म्यूजिशियन बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई क्या बनेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, हमें हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए, ठीक है ना? हम जिस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं हम उसको भूलते जा रहे हैं। प्लीज अपने आप के ऊपर प्राउड करो। जब आप अपने आप के ऊपर प्राउड करोगे, अपने इंस्टीट्यूट के प्रति जब प्राउड करोगे, प्यार करोगे, तो आप कभी गलत करोगे ही नहीं, कभी नहीं करोगे। पढ़ाई तो बात की स्थिति है। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय असिस्टेंट कमिश्नर सर और अन्य विद्वान साथी, जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया है, सर मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपने जितनी भी उम्मीदें हम लोगों से, इन बच्चों से लगाई हैं, उन सबको पूरा करेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होकर, जो आपने देखा कि आपने जो प्रधानमंत्री जी की बात करी कि विकसित भारत का सपना, उस सपने को ये लोग भी पूरा करेंगे निश्चित रूप से। ये इन बच्चों की तरफ से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और एक बात और सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो धारणा है वो पूरी तरह से स्कूल में आने के बाद बदल गई है। निश्चित रूप से सर, आप जो कल से देख रहे हैं वो कोई एक दिन में तो हमने अचीव नहीं किया है।
चाहे वो क्लीनिनेस हो या हाउस हो या क्लासरूम हो, ये बहुत पहले से कंटिन्यूटी बनी हुई है, लगातार वही चल रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लाख मेहनत करने के बाद, कुछ बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। एक छोटी सी बात है, वो राई का पहाड़ बन जाती हैं। और आजकल मीडिया वगैरह, आप तो सबको सर पता ही है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ डेफिनेटली बहुत अच्छा है, प्रशासनिक अधिकारी, हमारे प्राचार्य सब बहुत अच्छे हैं। और आपका मार्गदर्शन रहा और आपका आशीर्वाद रहा तो हम इस अच्छे को उत्कृष्ट बना देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। सर मैं 1 मिनट लूँगा, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे ये जो बच्चे खड़े हैं, ये अभी नवोदय विद्यालय समिति में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, लगभग उनमें सब में इन बच्चों का पार्टिसिपेशन है। चाहे वो खेलकूद प्रतियोगिताएं हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो। इन्होंने संभागीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, उन सब में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। खेलकूद में SCFI में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, नेशनल में तो बहुत सारे हुए हैं। अभी कला संगम में हमारे बच्चे गए थे, उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्काउट और गाइड का बैंड बहुत अच्छा रहा, उसने विशेष तारीफ हासिल करी है, अन्य स्थानीय राजनेताओं की भी और अधिकारियों की भी। तो निश्चित रूप से सर ऐसी बात नहीं है, और ये हम आपसे निश्चित रूप से वादा करना चाहते हैं और कि आने वाले दिनों में भी आप, क्योंकि आप हमारे क्लस्टर इंचार्ज हैं, तो निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में ये स्कूल नई ऊंचाइयों को छुएगा, नया विकास के जो रास्ते हैं उन पर आगे बढ़ेगा। और इन्हीं बच्चों में से आगे आने वाले भविष्य में, इन्हीं बच्चों में से बहुत सारे बच्चे आपको शायद एक कामयाब इंसान, कामयाब व्यक्ति बनकर आपको दिखाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे डेफिनेटली। और जैसा कि हमारे बीच में हमारे प्रांजित दास सर हैं, वैसे ही अगले साल या आने वाले सालों में बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में खड़े होंगे निश्चित रूप से, ये हम आपसे वादा करते हैं। बस एक ही कमी है सर, मैं 2 लाइन के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। रास्ते सभी साफ हैं, दूर अब मंजिल नहीं। रास्ते सभी साफ हैं, दूर अब मंजिल नहीं। बात बस आपके आशीर्वाद की है और कोई मुश्किल नहीं। तो निश्चित रूप से हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। और कल से आपने देखा कि बहुत सारे आपने क्षेत्र में देखे हैं, अभी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं सुबह से, और बाकी आप लोग क्लासेस देखेंगे, आप देखेंगे कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और टीचर बहुत अच्छे से काम अपना कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम आपके नेतृत्व में हम अपने स्कूल को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, नई ऊंचाइयों तक इसको लेकर जाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप हमारे बीच में आए, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया, हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आगे की जो कार्यकार्यवाही है वो कैप्टन है वो संभालेंगे। और उम्मीद करता हूं हम सबका दिन आज का अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।